व्हाट इज़ योर फर्स्ट मतलब रिएक्शन और कितना इम्पोर्टेंट है नॉमिनेशन ये आपके लिए? See Shadab, we started our YouTube channel around a year and a half back. Okay. और जब हमने शुरू किया था, we obviously didn't have any idea what we were doing. So अल्लाह का शुक्र है, it took off. You know, people and our viewers, the audience, they've sent us so much love over these like year, 2 years. So पहला जो रिएक्शन था वो तो यही था कि अल्लाह तेरा शुक्र है बिल्कुल कि जो हमारा प्लेटफॉर्म था वो from not knowing what we're doing to coming to a stage where we're nominated in a major award show. I mean, that's brilliant. बिल्कुल बिल्कुल. So आपके लिए ये nomination, so you're just saying कि it's important you क्योंकि आपका recognition एक हुआ. That's on. I mean, recognition is very important. बिल्कुल. हम लोग जो काम कर रहे हैं, you know, we review dramas and we interview celebrities और एक तरह से हम recognize कर रहे हैं हमारी drama industry को, हमारे talent को, हमारे artists को. So it feels all the more great कि हमें भी कोई recognize कर रहा है. You know, we put in a lot of effort. आपको पता है celebrities के interviews करना, line up करना, फिर वो करना और फिर जिस हिसाब से हम ड्रामे review कर रहे हैं, like you know, within a week we have to watch around like 10-12 dramas. ठीक है. So to watch those dramas and to watch with that kind of like you know eye के यार के वो जो जिसमें से चीज़ें आपने निकाल के और फिर उनको discuss करनी है. There's a lot of hard work. Of course. So आपकी क्या expectation है from this awards overall, like as a thing कि ये पहली दफ़ा हो रहा है तो आपकी क्या expectation है? What you said, recognition. I think anybody and everybody who's nominated, they're all brilliant, and I think उन सब लोगों के लिए भी सबसे बड़ी चीज़ यही होगी कि उनको recognize किया जा रहा है. ठीक है. जब भी कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में हो, अगर उसको और recognition से ज़्यादा मेरे ख्याल में appreciation भी है. आप जीते ना जीते वो बात की बात है. As long as you're nominated, like हम तो nomination पे इतना खुश हो गए हैं, and I'm sure बाकी भी जो हमारे nominees होंगे दूसरी categories में भी होंगे, there's a sense of achievement, and nothing beats that. So आप something hot को कैसे define करेंगे? Something hot. First of all, I'd like to say it's not something. It's now like a lot of hot. But no, I mean, जब हमने अपना YouTube channel भी create किया था और उससे पहले जब हमारा you know we've got a website as well, we've got an Instagram page and we're there on Facebook and we're there on Twitter as well. The idea was always to include the audience. ठीक है. अभी भी हमारी कोशिश यही होती है through our YouTube show and our YouTube channel कि हम अपनी audience को एक आवाज़ दें. बिल्कुल. हमारे जितने भी reviews होते हैं, हमारी जितने भी interviews होते हैं, they're all driven by the public opinion. जो भी लोगों को भी महसूस हो रहा है, ऑफ कोर्स हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे रिव्यूज में होता है, बट हम जो ड्रामास चूज करते हैं वो चूज करते हैं जिसके ऊपर ऑडियंस रिव्यू चाहती है या जिसके ऊपर ऑडियंस हमारा ओपिनियन चाहती है. सो हमारा समथिंग हॉट का मकसद यही है कि हम अपने व्यूवर्स को, अपनी ऑडियंस को आवाज़ दें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें, and on the other hand artists को भी एक platform दें. You know, we thought that it was very important to create a space, a platform where the audience and the artists are able to connect through us. ठीक है. And I think we've achieved that, alhamdulillah. The fact that we've been nominated kind of proves that. बिल्कुल. अच्छा, तो ये बताएं कि पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री और जनरली ड्रामाज क्या बहुत मुश्किल है उनके रिव्यूज़ करना, या मतलब not in terms of like logistics but like you know in terms of content जो निकाला जाता है, या आपको बड़ा आसान लगता है कि आदत हो गई है? It's a double-edged sword. Sometimes, you know, when you're watching a drama and you're really enjoying it, it's easy. Of course. Because आप एक चीज़ को enjoy कर रहे हैं. Entertain भी हो रहे होते हैं आप. कभी-कभी कुछ आप ऐसे ड्रामे देख रहे होते हैं जो आप देखते हुए उनको enjoy नहीं कर रहे होते, frustrate ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो तब उनको review करना मुश्किल होता है. लेकिन डोंट यू थिंक कि मतलब आई वुड से कि अगर कुछ एक्चुअली कुछ आपको लगता है कि बड़ा ही कोई फजूल चीज़ दिखाई जा रही है, तो डजंट इट ऐड मोर कंटेंट कि आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ सी कोई लाइन बोल दी. शादाब, हमने कोशिश ये की है कि वी डोंट गो डाउन दैट रूट. ठीक है. हमारी कोशिश ये है कि हम अगर क्रिटिसाइज भी करें तो कंस्ट्रक्टिवली करें. ठीक है. बिकॉज अल्लाह का बड़ा शुक्र है क्योंकि यू नो we're in conversation with the directors and the producers and the writers and the actors and somehow they take us seriously. अल्लाह का शुक्र है एंड उनका भी बहुत शुक्रिया. तो जब वो हमारी बातों को सीरियसली लेते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हम क्रिटिक भी सीरियसली करें और कंस्ट्रक्टिवली करें. ठीक है. आई मीन वी ट्राई नॉट टू क्रॉस दैट लाइन, बट कभी कभी शुगल हंसी मजाक हो जाता है. बिल्कुल. सो आपको क्या लगता है सबसे बड़े इश्यूज आप क्या फेस करते हैं while writing reviews या even doing a show on it?
इफ़ आई टॉक अबाउट द वेबसाइट, जब हम आर्टिकल्स कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक जो चीज़ हमें अक्सर दुख भी होता है, वो होता है कि देयर इज़ नॉट इनफ कंटेंट इन टर्म्स ऑफ लाइक ड्रामे तो आ रहे हैं आपके, बट आप हर रोज़ हर आर्टिकल, हर न्यूज़ आर्टिकल, हर पोस्ट ड्रामों के ऊपर नहीं कर सकते. पीपल नीड मोर कंटेंट. अनफॉर्चुनेटली फिल्में हमारी, आपको पता है, पहले ही कम बन रही थी, इस साल तो रिलीज़ भी नहीं हुई. सो कभी कभी उस बात का अफसोस होता है कि उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है जिसके ऊपर हम अपने ऑडियंस को बता सकें. हाँ, ड्रामों से हटके. बिल्कुल, ऑफ कोर्स ड्रामे बहुत बन रहे हैं, एक्टर्स भी बहुत हैं, बट ऑडियंस को आप एज अ प्लेटफॉर्म, एज एन एंटरटेनमेंट पोर्टल, हम चाहते हैं कि हम ड्रामों से हट के भी उनके लिए कंटेंट क्रिएट करें, ड्रामों से हट के भी उनके लिए चीज़ें लेके आएँ. सो वो एक है, बट यू नो होपफुली इन द नियर फ्यूचर विल गेट टू सी वेब सीरीज एज वेल. So that should be better. Well, wishing you all the best. So coming to your point of, आपने अभी थोड़ा सा हमें बताया कि कि ये जो producers हैं, directors हैं, जो लोग उसमें काम करें, वो हमें seriously भी लेते हैं. So 2 questions in regards to that. कि पहला तो ये है कि कोई दोस्त आपके नाराज़ हुए, because obviously you've been in the industry for long, लोग आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, उसकी वजह से ना लोग नाराज़ हो जाते हैं कि ओ मेरे ड्रामे के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया या ऐसा क्यों क्रिटिक कर दिया, something like that, क्योंकि ये बहुत देखा है. And the other question is कि डिस्पाइट बीइंग फ्रेंड्स आप कैसे अनबायस्ड रहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि मैं पब्लिक ओपिनियन प्रेजेंट करता हूँ, हाउ कैन यू स्टे अनबायस्ड? अच्छा, पहले सवाल का तो जवाब ये है कि एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अब तक किसी ने हमें कॉल करके ये नहीं कहा कि आपने ये क्यों कहा और ऐसे क्यों कहा. और उसकी वजह यही है जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, हम कोशिश ये करते हैं कि हम जब भी किसी चीज़ को क्रिटिक कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, तो हमारा रवैया, हमारा बिहेवियर, हमारे अल्फाज ऐसे हों कि किसी को दुख ना पहुंचे. ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी ड्रामे की बुराई ना की हो या उसमें से उसकी वीकनेसेस पॉइंट आउट ना की हो, बट हमने जब जब की हैं उस प्रोजेक्ट से एफिलिएटेड लोगों ने, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, हैव एक्चुअली रीच आउट टू अस एंड सेड के थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट. ये बहुत बार हुआ है. सो क्रेडिट गोज टू देम एज वेल, जो हमारे सारी ऑडियंस मेंबर्स हैं, एंड नॉट जस्ट दी ऑडियंस मेंबर्स बट ऑल्सो दोज ऑडियंस मेंबर्स हु आर एक्चुअली वर्किंग, जिनका काम हम रिव्यू कर रहे हैं, कि वो उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट ही किया है, क्रिटिसाइज कभी नहीं किया. दूसरे आपके सवाल का जो जवाब है, आई मीन वो बड़ा ईजी है, ठीक है, अनबायस्ड रहना, क्योंकि एक बैरोमीटर है वो हमारी ऑडियंस. ठीक है, जिस दिन उनको लगता है यार कि ये दोस्ती में आके इन्होंने कुछ बात ऐसी कर दी है जो कि अनफेयर है, वो हमारा कमेंट सेक्शन भर जाता है, बता रहा होता है. हमारी ऑडियंस बहुत प्रोएक्टिव है, बहुत इंगेजिंग है, वो इंगेज रहती है हमारे वीडियोस के साथ. सो वो हमें बता देते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं फिर. ठीक है, फेयर. वेल, आई टेक अ साइड क्वेश्चन ऑन दिस जो आपने बताया. सो अक्सर ये भी होता है कि मैंने देखा अभी रिसेंटली एक थोड़ा सा टॉक ऑफ द टाउन थी कि बुशरा अंसारी मैम ने थोड़ा सा रिएक्ट किया अबाउट वन ऑफ दीज रिव्यूज़ जो ऐसे ही चल रहा था. तो आपको क्या लगता है कि सेलिब्रिटीज़ को इन अ वे रहना चाहिए कि दिस इज़ अ ड्रामा एट द एंड ऑफ द डे? कुछ को स्टोरीज पसंद आती हैं, कुछ को नहीं आती. सो डू यू टेक इट लाइक, शुड दे टेक इट पर्सनली ऑन देमसेल्व्स और एज ऑन देयर आर्ट कि ओ ये रिव्यू अच्छा नहीं है, या उनको हाउ डू यू थिंक दे शुड रिएक्ट? ये तो अब जो रिएक्ट करते हैं वही बता सकते हैं. इसके ऊपर मेरा ओपिनियन इसके ऊपर यही है, एज अ क्रिटिक माई सेल्फ जी, मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप रिव्यू करें, किसी की दिल आज़ारी आपको नहीं करनी चाहिए. अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि किसी को दुख ना पहुँचे आपकी बातों से. अगर आपकी बातों से किसी को दुख नहीं पहुँच रहा और आपकी नीयत साफ है, तो फिर बाकी अब द बॉल इज इन द अदर पर्सन्स कोर्ट कि वो उसको कैसे रिएक्ट करते हैं. Yeah, so the bottom line is try to be sweet and nice, and अगर आपने किसी का कुछ weaknesses point out करनी है ज़रूर करें, बट एक तरीके के साथ. ठीक है, fair. अच्छा, so when it comes to your nomination, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा competition आपको कौन से other like with the show या social media platform कौन से दे रहे हैं? जो दोनों categories हैं उन दोनों में हमारे दोस्त हैं. ठीक है. जो हमारी मीडिया, जो most popular मीडिया पोर्टल वाली जो कैटेगरी है, वीर ऑल फ्रेंड्स, सारे हमारे दोस्त हैं, तो उन सब के लिए बहुत सारा प्यार, उनके लिए भी बेस्ट विशेस. एंड कमिंग टू द मोस्ट पॉपुलर वेब शो, देयर अगेन, आई मीन वॉइस ओवर मैन वजाहत इज सो फनी. आई वॉच हिज वीडियोज ऑल द टाइम एंड आई एम लाफिंग लाइक एनीथिंग, आई एम लाफिंग लाइक अ मैड मैन. एंड समीना जी के क्या कहने हैं, मतलब हम सब उनसे सीखते हैं, सीखते आ रहे हैं अभी भी. इतना वो जिस तरह से वो इंटरव्यूज़ करती हैं, हमने बहुत सीखा है उनसे. So everybody, Jugan again, she's amazing. So everybody is amazing. मैं वही कह रहा हूँ ना, नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात है. आगे की बातें बस वो व्यूअर्स के हाथ. So any message to your fellow nominees?
Just keep being yourself and keep entertaining. I think हम सब के ऊपर एक जो एडिशनल जिम्मेदारी है बियॉन्ड जो हम अपनी अपनी कैटेगरीज में जो कर रहे हैं, जैसे हम ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं और बाकी लोग जो है वो डिफरेंट शोज कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो जिम्मेदारी जो मेन है वो यही है, एंटरटेन करना ऑडियंस को। So as long as we're able to entertain the audience and as long as they're able to entertain the audience, I think purpose served. चलें, that's great. So आपको क्या लगता है कौन सा अवार्ड आप कंफर्म ले जाएंगे फ्रॉम हम तो इंशाल्लाह दोनों लेके जाएंगे। चलें, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एक जाने से पहले I quickly want to give a shout out to my partner. Of course. I like to call her my partner in crime and my colleague आमना इसानी, जिनके साथ मिलके हम ये वीकेंड रिव्यू एंड वीकेंड रिव्यू जो हम शोज करते हैं वो करते हैं। ठीक है। सो ये जो हमारा जितनी भी सक्सेस है उसमें आमना का उतना ही हाथ है जितना मेरा, हम दोनों की मिल के इत्तेफाक से आगे चलने से ये हम इस लेवल तक पहुंचे।